చేయడానికి దాని విజయవంతం కార్యక్రమంలో భాగంగా తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ వచ్చి ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి ఉద్యోగ సంఘాలకు పిలుపులు తెలుసుకున్నారు. 23-24 సమ్మెని జయప్రదం చేయాలని దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు ప్రెస్ మిత్రులతో కలుస్తున్నారు. ప్రెస్ మిత్రులతో కలవడానికి మన అధ్యక్షులు బాలరాజు గారు, అట్లాగే జాతీయ కార్యదర్శి విజయలక్ష్మి గారు, రాష్ట్ర కోశాధికారి ప్రేమ్ పవన్ గారు కూడా ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు బాలరాజు గారు 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. దాని తర్వాత అమర్జిత్ కౌర్ గారు మాట్లాడతారు. కాంగ్రెస్ ఈరోజు ఏఐటీసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ అమర్జిత్ కౌర్ గారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, అందులో మన ఏఐటీసీ ఆఫీస్కి వచ్చి ఈ ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొంటున్న దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం, ఈనాడు చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కూడా పెట్టుబడిదారు విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ కార్పొరేట్ శక్తులకు, అదేవిధంగా బడా వ్యాపారస్తులకు మేలు చేసేందుకోసం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ అమ్మేస్తూ, చౌక ధరకు అమ్మేస్తూ, ఇక ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఏముంటాయి, ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేయదలుచుకోలేదు, ప్రభుత్వానికి ఈ యొక్క సంస్థలకు సంబంధం లేనటువంటి పద్ధతిలో పెద్ద ఎత్తున కూడా అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క కార్పొరేట్ శక్తులకు మేలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తున్నాం. దాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఏఐటీసీగా. అదే సందర్భంలో ఏంటంటే బ్యాంకులు కానీ, అదే సందర్భంలో చూస్తే ఇక్కడ స్టీలు సంబంధించినటువంటిది కానీ, మన తెలంగాణలో మరి సింగరేణిలో 4 బొగ్గు బావుల్ని మరి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగించేందుకోసం పూర్తిగా రంగాలు సిద్ధం చేసింది. బ్యాంకుల్ని విలీనం చేస్తున్నారు ప్రైవేటులకు. ఈ విధంగా మరి ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇవి పెద్ద ఎత్తున కూడా పేద ప్రజల మీద, కార్మికుల మీద పెద్ద ఎత్తున కూడా దాడి జరుగుతుంది. దానితో పాటు కార్పొరేట్ శక్తులకు మేలు జరుగుతుంది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున కరోనా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కార్పొరేట్ శక్తుల యొక్క ఆస్తులు పెరిగినాయి, వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం పెరిగింది. పేద ప్రజల యొక్క మరి చూస్తే కనీస ఆదాయం తగ్గినటువంటి పరిస్థితిని కూడా చూడాలి. ఈ సందర్భంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ పేద ప్రజల పట్ల, కార్మికుల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి సంక్షేమ చర్యలను కూడా పెంపొందించడం లేదు, అమలు చేయడం లేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఏఐటీసీగా ఇతర కార్మిక సంఘాలను కలుపుకొని పెద్ద ఎత్తున కూడా పోరాటాలు, ఆందోళన చేస్తున్నాం. మరి ప్రభుత్వాలు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చినటువంటి వాటి కూడా అమలు చేయకుండా ఈనాడు 30% పిఆర్సీ మెడికల్లో కానీ, పారిశుద్ధ కార్మికులకు కానీ ఇస్తా అని చెప్పి దాదాపు 1 సంవత్సరం గడుస్తుంటే అనేక పోరాటాలు చేయడం ద్వారా ఈరోజు ప్రభుత్వం దిగొచ్చి ఒక జీవోను విడుదల చేయడం జరిగింది. అంటే పోరాటాలు తప్పడం లేదు. పోరాటాలు చేయకుండా ఈ ప్రభుత్వాలు దిగొచ్చే పరిస్థితి లేదు. దానిలో భాగంగానే పెద్ద ఎత్తున కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఈనాడు కార్పొరేట్ శక్తులు తమ యొక్క విముక్తుల్ని ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మరి పెద్ద ఎత్తున కూడా ముందుకు తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మరి భవిష్యత్తులో మరి మేము ఫిబ్రవరిలో పెద్ద ఎత్తున 2 రోజుల పాటు జాతీయ సార్వత్రిక సమ్మె జరుగుతుంది. ఈ సమ్మెను విజయవంతం చేయాలి. దీంట్లో కార్మికులే కాదు, వ్యాపారస్తులు, ఉద్యోగస్తులు, ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని 2 రోజులు జరిగేటువంటి దాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి జాతీయ ఏఐటీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ అమర్జిత్ కౌర్ గారు ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొంటారు. నేను వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఈ యొక్క ప్రారంభించి మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాను. फ्रेंड्स, प्रेस नोट में सब कुछ डिटेल में दिया है. सब चीज़ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन नटशेल में कुछ बात मैं कहना चाहूँगी. अभी सिचुएशन देश में जॉब के मामले में बहुत ख़राब है. जॉब लॉसेस हो रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है. और अभी भी जो 7.1% जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हुआ था, बेकारी का दर बढ़ी थी, तो पूरे देश में आज से 3 बरस पहले हाहाकार था कि ये 45 बरस में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर है. लेकिन अभी जो हाल ही में आंकड़े आए हैं वो 8% को भी पार कर गए हैं. तो मैं कह सकती हूँ कि 50 वर्षों में कभी इतनी ज़्यादा बेकारी हमारे देश में नहीं हुई थी. उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये कोविड महामारी की वजह से हुआ है.
हमारे रोजगार का लॉस होना, नई रोजगार पैदा ना होना, जो सैंक्शन पोस्ट्स हैं उनका भरा ना जाना, ये सारी सिचुएशन कोविड महामारी से पहले भी थी और चुनावों के दौरान भी ये बात सामने और साफ आ गई थी कि बेकारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोविड महामारी ने उसके अंदर एडिशन कर दिया, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन सरकार की जो बेसिकली जो नीति है वो छोटे सेक्टर को पीटने की है। हमारी मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं, जिनको MSMEs हम बोलते हैं, उन्हीं की पिटाई हुई थी नोटबंदी के टाइम पे, GST के चलते, और अब उन्हीं का बुरा हाल हुआ है इस कोविड पीरियड में। सरकार ने जितने पैकेज दिए वो कॉरपोरेट घरानों की मदद के लिए दिए, छोटे सेक्टर की मदद के लिए पैकेज नहीं दिया। और हमारे मजदूरों के लिए, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, और या हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं, उनके लिए पैकेज में कुछ नहीं था। और जब हम लोगों ने कहा था कि एकदम आपने लॉकडाउन लागू किया है, लगभग 40 करोड़ लोगों का रोजी रोटी एकदम सकते में पड़ गया है, ऐसे में FCI के गोडाउन के मुंह खोल देने चाहिए, राशन कार्ड की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए, आधार कार्ड की कनेक्टिविटी नहीं मांगनी चाहिए और 100% यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दो। लेकिन मोदी की सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। निर्मला सीतारमण को खुद मानना पड़ा, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि 80 करोड़ लोगों को जो हम राशन देने की बात करते हैं वो हमारी लिस्ट में है, लेकिन उसमें से भी 10 करोड़ लगभग लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले थे। तो जिनको राशन कार्ड मिले हुए हैं उनका भी कवरेज नहीं हो रहा था। जो उन लिस्ट में हैं लेकिन राशन कार्ड के साथ उनका जुड़ाव अभी नहीं हुआ, उनको इशू नहीं हुए, उनको भी राशन नहीं मिल रहा था। और उसके साथ साथ इस राशन कार्ड की लिस्ट के बाहर बहुत गरीब आदमी है जिसको राशन कार्ड कनेक्टिविटी नहीं है, उनको भी राशन नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने कहा था कि लगभग 40 करोड़ फैमिलीज होंगी जिनको तुरंत कैश की जरूरत है। तो 7,500 रुपीज पर फैमिली मोदी की सरकार को देने चाहिए जब तक हमारा देश कोविड की महामारी से बाहर नहीं आता। लेकिन मोदी की सरकार ने उस बात को भी नहीं माना, सबको राशन देना भी नहीं माना, और उसके साथ साथ सबको कैश का जो ट्रांसफर हमने कहा था हर फैमिली को दिया जाए, इस सरकार ने नहीं माना। इस सब चीज को लेकर के लोगों की हताशा भी बढ़ी है। हमारा हंगर इंडेक्स और खराब हुआ है। 107 देशों में हिंदुस्तान 101वें स्थान पे है। हमारे आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो हमसे बेहतर स्थिति में है। हिंदुस्तान उनसे भी बदतर हालत में है हंगर इंडेक्स में, यानी भूख के इंडेक्स में। और ILO का ये कहना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, कि आने वाले दिनों में 40 करोड़ हिंदुस्तानी पहले से ज्यादा गरीब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों की जो जीविका चली गई, लाइवलीहुड चली गई, जॉब्स चली गई, वो सबकी रीस्टोर नहीं हुई है। और छोटे सेक्टर के पैमाने पे काम करने वाला जो आगे लोगों को रोजगार देता था, उसकी हालत पतली हो गई है। हमारे जितने स्मॉल सेक्टर्स हैं, MSMEs हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 35% MSMEs मर चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही, खुद मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल रही है। और उनके मुताबिक 35% के करीब में तो वो काम नहीं शुरू कर पाए। अभी शुरू किए हैं तो अभी पहले लेवल पे वो बहुत दूर हैं अभी। और जो थोड़ा फिर से प्रॉफिट की तरफ बढ़ने की कगार में आए हैं कि रिस्टोर हो सके कोविड से पहले की सिचुएशन में, वो केवल 30% है। और ये सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और इस सेक्टर के साथ होम बेस्ड जो हमारे मजदूर हैं, जिनमें बहुमत हमारी बहनें होती हैं, पीस रेट पे जो काम करती हैं घरों में, उनकी बहुत बड़ी तादाद है होम बेस्ड सेक्टर वर्कर्स की। वो इसी छोटे सेक्टर से ही वो प्रभावित होता है।
तो जब छोटा सेक्टर पिटा है तो घरों में जो काम दिया जाता है महिलाओं को, उनको भी काम मिलना बंद हो गया है, या जिनको मिल रहा है वो बहुत कम हो गया है। तो घर के अंदर आमदनी कम हो गई है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई है। जो दाल हमें 60 रुपए में मिलती थी आज 150 में मिल रही है। चावल हो, चीनी हो, गेहूं हो, आटा हो, सब चीज का दाम बढ़ा है। और हमारे पूरे उत्तर भारत और उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है, मस्टर्ड ऑयल का, उसी से कुकिंग करते हैं लोग। वो 80 रुपए लीटर था जब मोदी की सरकार आई पावर में, वो अब 200 रुपए से ऊपर बिक रहा है। तो जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी कीमत दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, आमदनी कम हो गई, तो गरीबी के बढ़ने के ही आसार हैं और कुछ नहीं हो सकता। ये ग्राउंड रियलिटी है और सरकार सब जवाब दिखा रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है इस देश के अंदर। पर हम ये समझते हैं कि सरकार ने पिछले 5-6 दशकों में हमारे देश के लोगों ने जो बनाया था उसको बेचने का रास्ता अपनाया हुआ है। अब केवल निजीकरण और विनिवेश नहीं हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। सरकार एक नया नाम लेके आई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। अब ये जो नया प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैं प्राइवेटाइजेशन नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये देश बेचने का प्रोजेक्ट है। क्योंकि हर हमारा जो नेशनल रिसोर्स है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जितने नेशनल एसेट्स, राष्ट्रीय संपत्ति हमने क्रिएट की है, उस सब को दांव पे लगा दिया है, सरकार उनको बेच रही है। रेलवेज के रूट्स ऑक्शन किए जा रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स बेचे जा रहे हैं, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स को बेचने पे लगा दिया गया है, एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, एयरलाइन बेच दी जो गवर्नमेंट के पास थी, एयर इंडिया। टेलीकॉम सेक्टर की बुरी हालत इन्होंने कर दी है, उसके टावर्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बैंक्स और इंश्योरेंस को प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे ले जाया जा रहा है। अभी इसी पार्लियामेंट सेशन में 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार लिस्ट की हुई थी, वो लगा नहीं पाई क्योंकि उनकी टेक्निकलिटीज पूरी नहीं थी। या ये भी कहिए कि बैंक कर्मियों ने 16 और 17 तारीख को शानदार हड़ताल की, तो उसने भी थोड़ा एक रिलीफ दिया है, पर गवर्नमेंट उस रास्ते से हट नहीं रही है। इंश्योरेंस सेक्टर के एम्प्लॉइज आंदोलन में है, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी सरकार का हमला है। स्टील के ऊपर हमला है। आप जानते हैं कि आपके नेबरिंग स्टेट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बेचे जाने के विरोध में वहां सारी जनता है। केवल ट्रेड यूनियंस नहीं है, वहाँ के किसान भी हैं, वहाँ की पब्लिक भी है, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। उसके बावजूद भी मोदी की सरकार उस वाइजैक स्टील प्लांट को भी निजीकरण करने चाहती है। तो वो चाहे सेलम का प्लांट हो, दुर्गापुर का प्लांट हो, वो डिफरेंट स्टील प्लांट्स जो हैं, भिलाई का हो, सबको सरकार ने दांव पे लगाया है। 500 कोल ब्लॉक्स हैं जिसको गवर्नमेंट जो है उसको कमर्शियल माइनिंग के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन में दे रही है। टेलीकॉम के सेक्टर की तो हालत पतली थी ही, पोस्टल डिपार्टमेंट्स को भी कमजोर किया जा रहा है। एटॉमिक एनर्जी और स्पेस साइंस के अंदर भी निजीकरण के प्रोजेक्ट लाए गए हैं और बीपीसीएल को बेचने का रास्ता इन्होंने अपनाया हुआ है। वो प्रोसेस पूरी नहीं कर पाए तो अब कह रहे हैं कि हम अगले साल उसको करेंगे, 2022 के एंड तक हम बीपीसीएल को बेचेंगे। वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है। तो सरकार प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हो, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो प्रॉफिट देने वाले सेक्टर्स हैं उनको पहले सौदा किया जा रहा है। अगर मैं एयर इंडिया का केवल आपको उदाहरण दूं तो एयर इंडिया में 2 दशक पहले 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया था ताकि एयर इंडिया की जो खराब हालत है उसको इम्प्रूव किया जा सके, रिवाइटलाइज किया जा सके। और फिर लगभग 15 साल पहले 111 के करीब, उससे भी कम समय, बल्कि उससे भी थोड़े ही समय हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, 111 नए जहाज खरीदे गए थे। और वो 111 नए जहाज़ों का जो खर्च था वो लगभग 55-60 हजार करोड़ के आसपास था। अब जब टाटा को केवल 18,000 करोड़ में आप दे रहे हैं,
जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा जो एयर इंडिया में इतने वर्षों तक लगा, 60 वर्ष से ऊपर हो गए ये हमारी नेशनलाइज्ड एयरलाइन थी, तो उसमें जितना पैसा लगा जनता का और फिर ये जो इन्वेस्ट किया गया रिवाइटलाइजेशन के लिए और लगभग 60,000 करोड़ खर्च करके जो नए जहाज खरीदे गए, ये सब कुछ टाटा को पकड़ा दिया गया केवल 18,000 करोड़ रुपए में। तो मैं इसको क्या कहूंगी, ये तो सेल भी नहीं है, ये गिफ्ट है। और अभी अभी इन्होंने एक CEL कंपनी है साहिबाबाद में, गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका 1% भी शेयर प्राइवेट में नहीं है। उसकी जमीन की केवल जमीन की कीमत 410 करोड़ से ऊपर है और उसकी बिडिंग सरकार ने 210 करोड़ रुपए की उसकी बिडिंग लगाई है। और अभी मैं उस सब चीजों को की जो कीमत है, बाकी जो उसके एसेट्स हैं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रही, मैं केवल लैंड की बात कर रही हूँ। तो जो जनता के पैसे से सब कुछ डेवलप हुआ, इसीलिए उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, उस सारे पब्लिक सेक्टर के ऊपर सरकार ने हमला बोला हुआ है और उसको बेच रहे हैं। चाहे वो हमारे माइनिंग का एरिया हो और चाहे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरिया हो, सरकार की नजर जमीन के ऊपर है। किसानों के भी जो कानून लाए गए थे, उनकी जमीन हड़पने की बात थी और अपने कॉरपोरेट अदानीज, अंबानीज ऐसे मित्रों को देने की बात थी। और हमारे पब्लिक सेक्टर पे भी जो नजर है, उसकी जो लाखों एकड़ जमीन है, उसके ऊपर सरकार की नजर है। वो प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेस को वो देना चाहते हैं, वो चाहे इंडिया के हों चाहे वो फॉरेन कॉरपोरेट्स हों। तो ये गवर्नमेंट अपने देश के लिए काम नहीं कर रही है, सेल्फ रिलायंस की बात करती है लेकिन सेल्फ रिलायंस की कमर तोड़ रही है। मेक इन इंडिया की बात करती है लेकिन असल में हिंदुस्तानियों की जो भी कैपेसिटी है चीजों को बनाने की, रिसर्च की, डेवलपमेंट की, उसको खत्म कर रही है। तो मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, मेड इन इंडिया नहीं हो रहा है, असल में सेल ऑफ इंडिया हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड यूनियंस ने निर्णय लिया कि हम इन नीतियों का डट करके विरोध करेंगे। हम ये भी समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है बैठी हुई, मोदी की सरकार सेंटर में, वो हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान नहीं करती। जमीन स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों के अधीन है और बहुत सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी ने लैंड क्वेश्चन को स्टेट्स का सब्जेक्ट बना के रखा था। केंद्र की सरकार को हक नहीं है जमीन के ऊपर कोई भी निर्णय लेने का। तो किसानों के कानून कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में थे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे। और हमारे जो लेबर लॉज हैं जिनका कोडिफिकेशन किया जा रहा है, 4 कोड बना दिए गए हैं, जबरदस्ती रूल फ्रेमिंग की जा रही है। तो कोड भी कंकरेंट लिस्ट है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट नहीं होगी, रूल फ्रेमिंग नहीं होगी, नोटिफिकेशन नहीं होगा, वो लेबर लॉज लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान के फेडरल ढांचे का अनादर कर रही है, इज्जत नहीं कर रही है, बल्कि उसको तोड़ रही है। तो देश के अंदर टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति ये सरकार खुद कर रही है और जो इस सरकार का विरोध करते हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाती है। मेरा सीधे सीधे ये इल्जाम है कि ये गवर्नमेंट एंटी नेशनल है और जो इस गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करता है, गवर्नमेंट उन लोगों को एंटी नेशनल कहती है। हम ट्रेड यूनियन सरकार की इन नीतियों को इस देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे, ये सरकार को मालूम है। हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, ये सरकार को मालूम है और इसीलिए सरकार ट्रेड यूनियंस पे ऊपर हमला बोली हुई है। वो कमजोर भी करना चाहती है, यूनियन बनाना मुश्किल करना चाहती है, यूनियन की डी रिकॉग्निशन के रास्ते पे उतरी है, स्ट्राइक के हड़ताल को चैलेंज किया जा रहा है और हमारे डिफेंस एम्प्लॉइज के ऊपर जो स्ट्राइक का निर्णय लेके स्ट्राइक के ऊपर बैलेट ले लिए, 99% वर्कफोर्स ने कह दिया हम हड़ताल पे जाएंगे। तो सरकार ने हड़ताल को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस ले आए और जबरदस्ती फिर उसको कानून में बदल दिया। तो ये जो कानून है ये केवल डिफेंस सेक्टर में नहीं, डिफेंस से रिलेटेड जितने और सेक्टर्स हैं उन सब के ऊपर लागू हो सकता है। तो अगर सरकार हमारे स्ट्राइक के हक को लेबर लॉज में चेंजेस करके और ये जो नया एक्ट बनाया है उसके जरिए से चैलेंज करती है
तो फिर हमारा जवाब स्ट्राइक करके ही होगा सरकार को। तुम हमारी स्ट्राइक के हक को छीनना चाहते हो तो हम 23-24 फरवरी को स्ट्राइक करके दिखाएंगे कि इस हमारे अधिकार को तुम छीन नहीं सकते हो। चूंकि हमारे देश के मजदूर ने अपनी लड़ाई ही हड़ताल से शुरू की थी और ये कोई नई बात नहीं, 1827 से ये लड़ाई शुरू की थी। अंग्रेजी राज को सबसे पहले चैलेंज ही इस देश के मजदूर ने हड़ताल करके किया था। तो ऐसे में ये हमारा शस्त्र, हम कोई इमीडिएट फर्स्ट हैंड शस्त्र नहीं होता है। हम लोग तरह तरह से एजिटेशंस करते हैं और हड़ताल हमारा आखिरी हथियार होता है, लेकिन हमारे उस आखिरी हथियार को सरकार छीनने की प्रयास कर रही है। इसलिए हम हड़ताल के नोटिस दे करके 23-24 फरवरी के इस हड़ताल के निर्णय को लिए हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि सरकार ने उस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे वर्कर्स के ऊपर जितनी ज्यादतियां हो सकती थी होने दी और करवाई। कहा लॉकडाउन वेज देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मालिक केस लेके गए तो गवर्नमेंट अपने ही फैसले से भाग गई। कहा था किसी की रिट्रेंचमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन 50 से लेके 60% तक ही लोगों को वापस नौकरियां मिली हैं, बाकियों को नौकरियां नहीं मिली। कहा था कि वेज कट्स नहीं होंगी, लेकिन वेज कट्स हो रही हैं। कहा था कि किराए के मकानों से आपको हटाया नहीं जाएगा, हटा दिया गया था। और जिस ढंग से लॉकडाउन लागू किया था उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों की किस्मत के ऊपर लॉक कर दिया था और हजारों मील दूर हमारे वर्कर्स पैदल चले थे। अब उन माइग्रेंट वर्कर्स के जो कानून था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स लॉ है हमारे देश में, उसको सरकारों ने, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ईमानदारी से लागू नहीं किया। अब जरूरत इस चीज की थी कि उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि इस कोविड ने एक्सपोज करके रख दिया। हम बोलते थे कि हमारे देश के अंदर 20 करोड़ के करीब मजदूर हैं जो अपने घर से दूर जाके काम करते हैं, या अपनी ही स्टेट में किसी दूसरे जिला में या किसी और राज्य में जाके। तो 54 करोड़ मजदूरों में से 20 करोड़ के करीब मजदूर ऐसा है। इसलिए हम चाहते थे कि इंटर स्टेट जो माइग्रेंट एक्ट है उसको मजबूत किया जाए और लागू किया जाए। माइग्रेंट वर्कर्स पे पॉलिसी बनाई जाए, जहां से वो जाते हैं वहां उनके अधिकार सुरक्षित हो, जहां वो पहुंचते हैं उनके अधिकार सुरक्षित हो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, उस माइग्रेंट एक्ट को फिनिश कर रही है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के कोड में उसको मर्ज कर रही है। तो हमारे 22 कानून ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के जो अलग अलग सेक्टर्स को डील करते हैं वो उस कोड में लाए जा रहे हैं, पर कोई गारंटी नहीं है सिक्योरिटी की। हमारे ज्यादातर मजदूर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि वो कानून बोलता ही ऐसे है कि सारे कानून सबस्यूम हो जाएंगे और 10 एंड अबव जो एंटरप्राइजेज या इंस्टीट्यूशन होंगे उसी पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कानून लागू होगा। इसका मतलब है कि 54 करोड़ मजदूरों में से 40-41 करोड़ मजदूरों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं बंधे हुए, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का वर्कर है। तो ये सरकार असल में हमारे मजदूरों की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है, उनकी सेफ्टी को खतरे में डाल रही है। हमारे 15 सोशल सिक्योरिटी के कानून हैं, उन सब को सोशल सिक्योरिटी कोड में मर्ज किया जा रहा है। हमारे ESIC हॉस्पिटल के कानून को भी मर्ज किया जा रहा है, हमारा EPF को भी उसके अंदर मर्ज किया जा रहा है। बीडी का वेलफेयर बोर्ड हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड हो या इस तरीके के हमारे 15 सोशल सिक्योरिटी कानून हैं, उन सबको और वेलफेयर बोर्ड्स को सबको एक ही कोड में डाला जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि बाकी सब वर्कर्स के लिए पैसा कहाँ आएगा, और हाँ इनका जो पैसा है, जो एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी है, इनके पैसे के अंदर कोई दखल नहीं किया जाएगा, ये उन्हीं वर्कर्स का रहेगा। इसकी कोई गारंटी सरकार देने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब है कि सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स को मिलने वाली नहीं है, उनको सोशल सिक्योरिटी से बाहर फेंका जाएगा। उसी के साथ साथ अगर कोड और वेजेस देखते हैं तो वेज की डेफिनेशन बदली जा रही है और मिनिमम वेज के कानून को कमजोर किया जा रहा है और फ्लोर लेवल वेज की बातें की जा रही हैं और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला करके वेज स्ट्रक्चर को कैलोरी बेस से हटा के कुछ घंटों में सीमित किया जा रहा है।
काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। तो वेज का जो कोड है वो बहुत ही रेट्रोग्रेड है, बहुत ही खराब कानून वो भी है। अगर आप ले लेते हैं कोड ऑन इंडस्ट्री, उसमें हमारे ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन मुश्किल, डी रिकॉग्निशन का प्रावधान, ट्रेड यूनियन लीडर्स पे 2 लाख से लेके 10 लाख की पनिशमेंट, उनको जेल का रास्ता दिखाने के को मजबूत किया गया है। मालिकों के ऊपर जो पनिशमेंट्स थी उसको कम किया गया है और उसी में ही हड़ताल के अधिकार को भी चुनौती दी गई है। जो नेगोशिएशन का सिस्टम था उस नेगोशिएशन के सिस्टम को तोड़ा जा रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि 7th पे कमीशन के बाद अगर सरकार इस ढंग से कोड्स को जबरदस्ती लागू करेगी तो कभी 8th पे कमीशन हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं देख पाएंगे। अगर इसी तरीके से सरकार चलेगी तो जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होती है हमारे पब्लिक सेक्टर्स के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। अगर यही रास्ता सरकार का रहेगा तो हमारी जो मिनिमम वेज का सिस्टम है, हमारी वास्ट मेजॉरिटी 90% से ज्यादा हमारे जो वर्कर्स हैं जिनके लिए हम मिनिमम वेज के सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मिनिमम वेज की कमेटियों के अंदर ट्रेड यूनियंस को नहीं रखा जा रहा है, एक्सपर्ट के नाम पे सरकारी भोपू वहां बिठाए जा रहे हैं। ये प्लानिंग गवर्नमेंट की है इन कोड्स के जरिए से। तो ये रास्ता सीधे सीधे ट्रेड यूनियंस की आवाज को कुचलने का है, यूनियंस को कमजोर करने का है, क्योंकि यूनियंस सरकार की जो राष्ट्र विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ताकत है, इसलिए सरकार ट्रेड यूनियंस पे हमला बोल रही है। इस स्थिति में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत गैर बराबरी बढ़ रही है। 80 बरस पहले जो बहुत अमीर और एक बहुत गरीब आदमी में गैप था, हिंदुस्तान वापस वहां पहुंच चुका है। और कोविड महामारी के पीरियड के अंदर जो 100 के करीब बिलियनियर्स थे, खरबोपति थे, उनकी गिनती 140 हो गई। सरकार पैकेज दे रही थी इन्हीं कॉर्पोरेट घरानों को और सरकार कुछ नहीं दे रही थी जो हम मांग रहे थे हमारे मजदूर के लिए। और उस पीरियड में 13 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस किया इन कॉर्पोरेट घरानों ने। और उसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जब सेकेंड वेव चल रही थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, वेंटिलेटर बेड्स नहीं मिल रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। रेमडेसिविर का इंजेक्शन तो दिल्ली में 2.5 लाख में बिक रहा था। उस पूरे दौर के अंदर जो हेल्थ सेक्टर में अमीर कॉर्पोरेट घराने हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेडिसिन की और उसका व्यापार करते हैं, वो हर रोज 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। तो ये सरकार किनकी सेवा में लगी है? अडानीज और अंबानीज की सेवा में लगी है, टाटाज की सेवा में लगी है, जिनको गिफ्ट में एयर इंडिया पकड़ा दिया गया है। तो ये सारा का सारा जो सरकार का रास्ता है, देश बेचू रास्ता है। और ट्रेड यूनियंस जो हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग थे, वो आजाद हिंदुस्तान के अंदर देश को बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग थे, वो ट्रेड यूनियंस ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये सरकार को भी मालूम है। और इसीलिए हमारा यूनियंस के ऊपर उन्होंने हमारी यूनियंस पे हमला बोला हुआ है। इसीलिए सख्त लेबर कोड्स जो है लाने की बात की जा रही है। पर हमारा ये कहना है, हम स्टेट्स के अंदर एजिटेशंस को तेज करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को हम नकेल डाल पाए कि ये नहीं लागू होने देने हैं इस स्टेट के अंदर ये लेबर लॉज, इसलिए स्टेट के अंदर जो रूल फ्रेमिंग है उस रूल फ्रेमिंग को मत करो, और अगर करो तो वो वर्कर्स के हक जो कोड्स छीन रहे हैं इन रूल्स के जरिए से उनको रिस्टोर करो, तभी हम लागू होने देंगे, नहीं तो नहीं लागू होने देंगे। इसलिए हमारी लड़ाई केवल मोदी सरकार के खिलाफ ही नहीं है, हम राज्य सरकारों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट कर रही है मजदूर यूनियंस को दबाने के लिए, तुम अगर उनका साथ दोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी हमारी ट्रेड यूनियंस का मोर्चा जारी रहेगा, जैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट के साथ हमारा ये है। उस इनइक्वालिटी के दौर के मैंने बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर दिए हैं। हमारे पेंशन को भी गवर्नमेंट जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हम उसको रिस्टोरेशन चाहते हैं। नई पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू की थी हम उसका खात्मा चाहते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आई थे। अब ये हमारे पेंशन फंड्स को भी बाजार में लगाना चाहते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है उसको भी बाजार में फेंकना चाहते हैं। 65 लाख के करीब जो पेंशनर्स हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए भी एक मुसीबत है।
और बहुत सारा हमारा मजदूर तो किसी भी पेंशन को नहीं पाता है, उसकी तो पेंशन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि सबको पेंशन मिलना चाहिए। और जो मोदी की सरकार ने सो कॉल्ड पेंशन स्कीम डिक्लेयर की थी, वो तो एक मजाक बन के रह गई है। जब आप 40 साल के बाद उसको ले सकते हैं तो तब तक वो मजदूर भी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी सारी कंट्रीब्यूशन तो वहीं पड़ी रह जाएगी, सरकार के जो फाइनेंसेस हैं वहां पर पड़ी रह जाएगी। तो उसका इशू भी हमने इसके अंदर रेज किया है इस प्रेस ब्रीफ में। हमारे जो स्कीम वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, उनके वर्कर के स्टेटस की डिमांड हम लोग लगातार उठाते रहे हैं। हमने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में भी उसको पास करवाया, रिकमेंडेशन करवाई, लेकिन सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हमारा मिनिमम वेज 21,000 हम लोग मांग रहे हैं। हम आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स को हम कह रहे हैं कि उनको वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए। हमारी 7,500 पुअर फैमिलीज को देने की डिमांड अभी भी जारी है। लॉकडाउन वेजेस वापस मिलनी चाहिए, वो जारी है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए, पूरा का पूरा निजीकरण का पॉलिसी चेंज होना चाहिए। वो सब इश्यूज हमने इसके अंदर लिस्ट किए हुए हैं, जो जिन इश्यूज के ऊपर हम लोग ये कैंपेन करेंगे 23-24 फरवरी से पहले तक। स्टेट लेवल जॉइंट कन्वेंशंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉइंट कन्वेंशंस, सेक्टोरल लेवल कन्वेंशन, सिग्नेचर कैंपेन्स, जहां पर पॉसिबल हो जत्था निकालना, आम जनमानस के बीच में सरकार की जो देश विरोधी नीतियां हैं उनको एक्सपोज करते हुए, बताते हुए, समझाते हुए हम 23-24 फरवरी की हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूं कि हम ट्रेड यूनियंस ने लगातार किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। बेहतरीन ऐतिहासिक आंदोलन किसानों का हुआ और सरकार को अपने ही चालू किए हुए वो जो कानून थे पार्लियामेंट में पास कराए, घुटने टेक के वापस लेना पड़ा। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ना अपनी कैबिनेट से और अपने कृषि मंत्री से पूछा जब उन कानून को लाया गया, और अब जब उसको वापस लिया गया तो कैबिनेट से या कृषि मंत्री से नहीं पूछा। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस केवल फंक्शन करता है, किसी मिनिस्ट्री को, किसी कैबिनेट को फंक्शनिंग है ही नहीं है। इसलिए वन मैन शो हो रहा है, और वो वन मैन शो इतना भयंकर हो रहा है कि केवल ऐसा नहीं है कि इनके मंत्री संतरी और इनके ट्रोलर्स जो लगातार आईटी सेल्स पे एक्टिव रहते हैं, जिन्होंने हर किस्म की गाली किसानों को दी, उनको आतंकी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनकी औरतों को गाली दी गई, उनके नौजवानों को गाली दी गई, उनके बच्चों को वहां पे आने पे गाली दी गई, उनके बुजुर्गों को आने पे गाली दी गई। उसके बावजूद भी उन्होंने पीसफुली उस आंदोलन को चलाया। 700 से ज्यादा किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने एक आंसू नहीं बहाया। वो सब तो बॉर्डर से वापस नहीं गए ना, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूपी के अंदर इनकी हालत पतली हो रही है, इतनी पतली हो रही है कि पूरा का पूरा कम्युनलिज्म का, फिरका परस्ती का नंगा नाच वहां खेला जा रहा है। इनके मंत्री संतरी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और साधु संतों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस भाषा का प्रयोग करने के लिए माइनॉरिटीज के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को गहरा करने के लिए। तो कभी क्रिश्चियंस के ऊपर हमला है, कभी मुस्लिम्स के ऊपर हमला है, और अब सिख्स के ऊपर हमला शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री खुद ऐसी हरकत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपनी पदवी की गरिमा नहीं मालूम है। मैं कहना चाहती हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मिस्टर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इसकी प्रधानमंत्री की पदवी भी कोई इज्जत है, कोई गरिमा है। आप उसको तार तार कर रहे हो, चीर चीर कर रहे हो। जिस ढंग का बयान आपने पंजाब में जाकर के दिया, वहां एयरपोर्ट से निकलते हुए, पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है। और आप किस भाषा का प्रयोग वहां पर कर रहे थे कि मैं जिंदा बच के आ गया। तो जो बॉर्डर्स के ऊपर किसान आंदोलन के लिए बैठे थे, जिनके पास आप एक बार भी नहीं गए, 700 से ज्यादा मर गए, आपने तो एक आंसू नहीं बहाया उनके लिए। आपने उनको जवाब नहीं दिया, उनकी फैमिलीज को, कि वो अपने घर में जिंदा नहीं पहुंचे, और आप झूठ बोलते हैं।
आपको मालूम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एसपीजी देखती है? कि आपको पता नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्टों की हो और चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य गवर्नमेंट ने केवल और केवल एसपीजी के अंडर सिर्फ फोर्स देनी होती है जितने आदमी मांगे जाते हैं, उससे ज्यादा राज्य गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। होम मिनिस्ट्री का रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर आज के हों या प्राइम मिनिस्टर पहले थे, एसपीजी करती है सारी सिक्योरिटी। तो फिर आपकी एसपीजी का लैप्स था ना। 2 दिन से बारिश चल रही थी, आप क्यों गए वहां पर? अगर आप गए, आपको जाना ही था, तो फिर आपने तो पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि आप वहां से हेलीकॉप्टर लेके जाओगे। और जब किसानों को पता लगा प्रधानमंत्री फिरोजपुर आ रहे हैं, तो वो काले झंडे दिखाने के लिए वहां जाना चाहते थे। और अगर वो फ्लाईओवर जाम था तो उन किसानों को तो नहीं पता था कि प्रधानमंत्री अचानक हेलीकॉप्टर छोड़ करके सड़क के ऊपर निकल पड़े हैं। आपने किसानों पे इल्जाम लगाया, आपने पंजाबियत पे इल्जाम लगाया, केवल वहां की सरकार पे नहीं लगाया। सरकार कोई सी भी होती, आज वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, किसी की भी गवर्नमेंट होती, लेकिन आपने जिस तरीके से राज्य सरकार पे थोपने की कोशिश की, तो प्राइम मिनिस्टर होके भी आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर केवल पीएमओ ऑफिस फंक्शन करता है और अपनी चुनावों की रणनीति के अंदर कुछ भी ये करते हैं। ईडी इस्तेमाल हो रही है, सीबीआई इस्तेमाल हो रही है, एनआईए इस्तेमाल हो रही है, एनएसए इस्तेमाल हो रही है, यूएपीए इस्तेमाल हो रहा है, सेडिशन लॉ इस्तेमाल हो रहा है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको जेलों में डाला जाता है। वो चाहे ट्रेड यूनियंस में एक्टिव हो, किसान आंदोलन में एक्टिव हो, विद्यार्थियों में एक्टिव हो, नौजवानों में एक्टिव हो, वो इंटेलेक्चुअल्स हो कि वो वकील हो, कोई भी हो, उन सबको इन कानूनों के जरिए से दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि एज फार एज ट्रेड यूनियंस आर कंसर्न, ना हम डरे थे, ना हम डरते हैं, ना हम कभी बैठे थे और ना हम आराम से बैठेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को हम ये बता देना चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट को और राज्य सरकारों को भी, अगर वो उसी रास्ते पे उनका सहयोग करने के लिए निकलेंगी, कि हम ट्रेड यूनियंस अपनी लड़ाइयों को, संघर्षों को और मुस्तैदी से आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसीलिए 23-24 फरवरी की हड़ताल एक बिगिनिंग है, ये कोई इति नहीं है। और ये आंदोलन 2024 आते आते इनका लेवल रेज किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने तय करना है कि तुम देश को बेचने के रास्ते को बंद करोगे, खुद को बदलोगे, या कि गद्दी छोड़ करके खुद ही बदल करके चले जाओगे। ये उनको तय करना होगा। हमने रास्ता चुना है, संघर्ष का रास्ता चुना है, जिस रास्ते पे हम हमेशा थे। और इसलिए मैं तेलंगाना के भी सारी ट्रेड यूनियंस को, सारे वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, आम जनमानस को, आवाम को आह्वान करने के लिए यहाँ भी पहुंची हूँ। ऑल ओवर इंडिया ट्रेड यूनियन लीडर्स जा रहे हैं ताकि इस हड़ताल की तैयारियों को देखा जा सके। तो यहाँ भी उस हड़ताल की तैयारियों के सिलसिले में मैं यहाँ भी बातचीत करने के लिए आई हूँ। हमारा जनरल काउंसिल का मीटिंग भी होना है फरवरी के बिगिनिंग में, यहीं हैदराबाद में होना है, उसकी तैयारी भी देखने आई हूँ, क्योंकि वो भी हड़ताल को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लेवल का हमारा और मजबूत निर्णय करने के लिए हमारी जनरल काउंसिल हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं कहना ये चाह रही थी कि हम किसान आंदोलन के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का हमको सपोर्ट ट्रेड यूनियंस को है और इसलिए उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 23-24 फरवरी की हड़ताल में किसान हमारे साथ सॉलिडारिटी सपोर्ट में रहेंगे। हम समझते हैं कि ये 23-24 की फरवरी की हड़ताल गांव और शहर दोनों जगह पे एक बहुत मजबूत हड़ताल के रूप में पहली हड़तालों से भी ज्यादा मजबूत हड़ताल होगी और इस देश के अंदर इट विल सेट द बॉल रोलिंग कि 2024 आते आते इस देश का आवाम ये समझ जाए कि जिनको हुकूमत में बिठाया था वो जनमानस की सेवा करने के लिए काम करने की बजाय
देश को बेचने के काम पे निकले हुए हैं। कुछ चंद मित्रों को मुनाफा देने के वास्ते इस देश की धन दौलत को बेचने के लिए निकले हुए हैं, और जो इनका विरोध करते हैं उनको कुचलने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, और जो इनका विरोध करते हैं उन्हीं को षड्यंत्रकारी बोलने लग जाते हैं। तो मैं मीडिया के साथियों से मेरी आग्रह है कि नेशनल मीडिया में तो बहुत बुरी हालत है कि वहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी जो पार्टी है वो अपने पक्ष में बिठाई हुई है, क्योंकि कॉरपोरेट घराने उन मीडिया को चला रहे हैं। कोई कोई इक्का दुक्का जो ठीक आवाज वहां पर दे पा रहे हैं, लेकिन जो राज्य के मीडिया हैं, जो प्रिंट मीडिया है वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज के, वो अभी भी जनमानस के आंदोलनों को जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, उनकी एक्टिविटीज़ को भी स्पेस दे रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तेलंगाना का जो प्रिंट मीडिया है, जो यहाँ का सोशल मीडिया है, जो फेवरेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जनमानस की फेवर की बात करता है, संविधान के फेवर की बात करता है, उनको मैं अपील कर रही हूँ कि हमारे इस हड़ताल के कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा वो पब्लिसिटी देंगे कि हम ये करने वाले हैं और उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं इतना ही कह के अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग को यहीं पर रोक रही हूँ। క్లోజ్ ప్రజల్ని కాపాడండి, దేశాన్ని కాపాడండి నినాదం తీసుకుని దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతూ మన రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో బ్రిటిష్ దోపిడీ నుంచి భారతదేశాన్ని విముక్తి చేయడంలో కార్మిక వర్గం ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. ఈ రోజును కూడా కార్పొరేట్ శక్తుల దోపిడీ నుంచి భారతదేశాన్ని, భారతదేశ ప్రజల్ని విముక్తి చేయడానికి కార్మిక వర్గం, కర్షక వర్గం, ఉద్యోగ వర్గం అందరూ కూడా సమైక్యంగా పోరాటం చేయాలని పిలిపించినటువంటి అమర్జిత్ కౌర్ గారు, ఏఐటీసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశం ఇంతటితో ముగిసిందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను.